ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کروں مجھے کون روکنے والا ہے، مجھے کون ٹوکنے والا ہے، میرے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے والا کون ہے، میرا بازو تھامنے والا کون ہے، مجھے روکنے والا کون ہے؟ اس لیے کہ میرے پاس تو قوت بھی موجود ہے، میرے پاس تو دولت بھی موجود ہے، میرے پاس تو جوانی کی قوت بھی موجود ہے، میرے پاس تو حسن بھی موجود ہے۔ غرض کہ انسان ایک گھمنڈ میں ہے، ایک غرور میں ہے، تکبر میں ہے۔ طاقت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، حسن ہے، جمال ہے، زندگی ہے، میں جو چاہوں کروں۔ اور پھر بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان جمہوری ملک میں رہتا ہے تو پھر اس کے بعد تو اس کو روکنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں۔ مگر یاد رکھیں، دنیا کی کسی قوم کا انسان یہ ضرور سوچ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس طاقتور خدا کا تصور نہیں ہے، قوت والے خدا کا تصور نہیں ہے۔ اور جگہوں پر انسان یہ سوچ سکتا ہے، اس لیے کہ کسی نے جو ہے اللہ اکبر درخت کو خدا مانا، کسی نے دریا کو خدا مانا، کسی نے پہاڑ کو خدا مانا، مگر اللہ اکبر جس نے وحدہ لا شریک کو خدا مانا ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے، اس کی قوت کا اندازہ، اس کی طاقت کا اندازہ کوئی کیا لگا سکتا ہے؟ ارے جب اس کے بنائے ہوئے عبد خاص کی قوت کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر زمین پہ کھڑے ہو کر کے اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جب بنائے ہوئے بندے خاص کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جس نے اس بندے خاص کو بنایا ہے اس خدا وحدہ لا شریک کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس کے محبوب کی طاقت جب یہ ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو اشاروں سے وہ پلٹا سکتے ہیں تو اس خدا کی قوت کا عالم کیا ہوگا جس نے اشارہ کرنے والی اس انگلی کو پیدا فرمایا ہے؟ اندازہ تو کریں۔ وہی اللہ ہماری غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، کتاب الہی پکار پکار کر کہہ رہی ہے، اے اپنے حسن پر، جوانی پر، طاقت پر، قوت پر غرور اور گھمنڈ کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع۔ اور جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا نہیں سکتی۔ عذاب کس بنیاد پہ ہوگا؟ حدیث کہہ رہی البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، والدیان لا یموت، اور بدلہ دینے والے، صلہ دینے والے، جزا و سزا دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اعمل ما شئتا، پھر تم جو چاہو کرو، نیکیاں کرنا چاہو تو نیکی کرو، گناہ کرنا چاہو تو گناہ کرو، کیونکہ نیکی کا اپنا اثر ہے، گناہ کا اپنا اثر ہے۔ نیکی کبھی بھلائی نہیں جا سکتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، صلہ دینے والے خدا کو موت نہیں آ سکتی۔ تم جو چاہے کرو، ارشاد ہو رہا ہے، شان بے نیازی دیکھیں، تم جو چاہو کرو، اچھا کرو، برا کرو، جو چاہو کرو، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کریں یہ خدا کا عذاب ہے۔ رات کی تاریکی میں اگر گناہ کرو گے صبح کو اس کا اثر نظر آئے گا، روزی پر اثر نظر آئے گا، اللہ فوراً سزا دیتا ہے۔ قبر میں جو سزا ہے اس سے بڑی سزا، یعنی جیسے جیسے آگے بڑھتے جاؤ گے سزا بڑھتی جائے گی۔ جو گناہ کرتے ہو دنیا میں اس کا اثر نظر آئے گا، اس کے بعد قبر میں اس سے زیادہ اثر نظر آئے گا، اس کے بعد میدان محشر میں اس سے زیادہ اثر نظر آئے گا، اور اس کے بعد جب جہنم میں جائے گا مجرم تو اور زیادہ اثر نظر آئے گا۔ یاد رکھنا، رات کو گناہ کرتے ہو، صبح گاہک پر اثر نظر آتا ہے، صبح روزی روٹی پر اثر نظر آتا ہے، صبح
सुबह चेहरे पर असर नजर आता है। एक बात मैं आपको बताऊं सच्ची सच्ची, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर जब ये आयत उतरी, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती तुम्हारे आमाल की वजह से आती है, तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा से फरमाया, तुम्हें जो खुजली आती है बदन में वो भी गुनाह की वजह से आती है, आंखें जो फड़कती है वो भी गुनाह की वजह से फड़कती है, जिस्म का कोई उज़्व लरसता है वो भी गुनाह की वजह से लरसता है, चिराग बुझता है तो गुनाह की वजह से बुझता है, पैर में कांटा चुभता है तो कोई गुनाह की वजह से चुभता है। अब इसको अगर आप गौर करके देखें तो पता क्या चलेगा, सुस्ती गुनाह की वजह से, काहिली गुनाह की वजह से, नींदों का चैन खत्म होना गुनाह की वजह से। पता चला जिस दिन इंसान गुनाह छोड़ दे वो इतना सुकून से रहेगा कि कभी उसके जिस्म में खुजली भी नहीं आ सकती, उसको कभी कांटा भी नहीं चुभ सकता। अल्लाह अकबर। बल्कि इंसान के पसीने में बदबू भी अगर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उसके अमल का उसमें अमल दखल होता है। इसीलिए आप देखें कि मजजूब लोगों की बरसों नहीं नहाते तो भी उनके कपड़ों में बदबू नहीं होती। गौर फरमाए, गौर फरमाइए, गुनाह है, जहां गुनाह है वहां फना है। उन्वान तो ऐसा है कि इस पर बहुत बोला जा सकता है, लेकिन मुझे एक लंबे सफर पर जाना है, मुझे अपने वक्त पर गुफ्तगू खत्म करनी है। हम गुनाह कर रहे हैं, परेशानियों की वजह गुनाह है। अगर हम बीमार हो रहे हैं उसका कोई ना कहीं सबब गुनाह है। अगर हमारे घर में ऐबी बच्चे पैदा हो रहे हैं कहीं ना कहीं सबब गुनाह है। अगर हम जलील हो रहे हैं कहीं ना कहीं सबब गुनाह है। हत्ता कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, तुम पर हुक्मरान भी जो बदलते हैं वो तुम्हारे आमाल के बदलने से बदलते हैं। मिशकात शरीफ की हदीस से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो मैं तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत करता हूं और उन जालिमों के दिल में तुम्हारी दुश्मनी पैदा कर देता हूं, फिर वो तुम पर जुल्म करते हैं और तुम आहो बुका करते हो, तुम गिड़गिड़ाते हो। अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में कि तुम्हारा उनके पास गिड़गिड़ाना कोई काम नहीं आता। अगर गिड़गिड़ाना है तो मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर इंसान मसाइल का शिकार है, हर इंसान बर्बादी का शिकार है, हर इंसान जो है वो रोजी रोटी को लेकर, बच्चियों के रिश्तों को लेकर, रिश्तेदारों के मामलात को लेकर, घर वालों के मामलात को लेकर, दोस्तों के मामलात को लेकर सब परेशान है और सारी परेशानियों की वजह गुनाह है। मेरे भाइयों, कब तक गुनाह करते रहोगे? खुदा के अजाब की शक्लें मुख्तलिफ है। इन्ना अजाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े। बस इतना समझ लो, कितना भी नेक आदमी गुनाह करे उसकी सजा उसको मिल के रहती है, या ठोकर लगने की वजह से सजा मिलती है, या चोट आने की वजह से सजा मिलती है, या पैर में कांटा चुभने की वजह से। और अगर काफिर भी नेकी करे, तवज्जो कर, काफिर भी नेकी करे तो अल्लाह उसकी नेकी का सिला उसको अता करता है। अगरचे दुनिया में उसके लिए, आखिरत में कोई सिला नहीं, लेकिन दुनिया में उसके लिए है। बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ एक बात आपसे कहता हूं, आप मुझे बताएं, बहुत सारे काफिर ऐसे हैं कि जिनके यहाँ दौलत उबल रही है, उनको दुनिया में बज़ाहिर सुकून है, वजह उसका कोई ना कोई अमल ऐसा है दुनिया में जो बज़ाहिर नेकी कहलाता है। अल्लाह काफिर को भी नेकी का सिला अता करता है। इसकी भी बेशुमार मिसालें मौजूद है, बेशुमार दास्तानें मौजूद है। लेकिन सबसे हटकर अब आइए मैं आपको बताऊं, इंसान जो गुनाह करेगा उसको भुगतान दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा, कब्र में भी भुगतना पड़ेगा, और हश्र में भी भुगतना पड़ेगा, और आखिरत में भी भुगतना पड़ेगा। आप कहेंगे क्या अल्लाह करीम नहीं? बेशक अल्लाह करीम भी है, रहीम भी है, सत्तार भी है, गफ्फार भी है, मगर वो कहार भी है, वो जब्बार भी है, वो गज्जूर भी है। इसलिए जब गुनाह करो तो गुनाह करते वक्त जरा तसव्वुर कर लो, जब वो मुंतकीम हकीकी इंतकाम लेने पर आता है तो फिर वो नबी के बेटे को भी नहीं छोड़ता। अल्लाह
खुदा के पैगंबर को कहता है, नूह अपनी हाथ की बनाई हुई कश्ती में तुम अपना बेटा शामिल नहीं कर सकते, इसलिए कि हम उससे नाराज हैं। जरा गौर तो फरमाएं, हजरत नूह की बनाई हुई कश्ती में खुद का बेटा नहीं बैठ पा रहा है। ये गैरत है, गैरत। और असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत का दूल्हा बनाया जा रहा है। ये रहमत है, रहमत। अगर रहमत करने पर आते हैं तो कुत्ते को भी जन्नती कर देते हैं, और गैरत करने पर आते हैं तो नबी के बेटे को भी जहन्नम का ईंधन बना देते हैं। इसलिए इंसान को बहुत सोच समझ कर जिंदगी गुजारना चाहिए। अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए ये बात याद रखना, अल्लाह के अजाब को कोई बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। अगर अल्लाह अपना अजाब पहाड़ों पर नाजिल कर दे तो पहाड़ भी पिघल जाएं, पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ये टेंशन क्या है? ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है। इसी तरह मियाँ बीवी में इख्तिलाफ क्या है? ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है। 99% लोगों के साथ यही है। 1% लोगों का मामला अलग हो सकता है, आजमाइश के तौर पे, इम्तिहान के तौर पर, किसी हिकमत के तौर पर, लेकिन मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूं। आइए अब गुफ्तगू का रुख मोड़ते हुए खुदा के अजाब की शक्लें क्या है थोड़ा सा उसको महसूस कर ले। दुनिया में मैंने इशारा कर दिया, अब जरा कब्र की तरफ चलते हैं। दुनिया में तो ये है, टेंशन है, बीमारियां हैं, बच्चियों को रिश्ते का ना आना है। लोग कहेंगे ऐसा भी है, मैं कहता हूं हाँ। अगर नेकी करो बच्चियों के रिश्ते चल कर आए। आप देखो आज से 50 साल पीछे जाओ, बच्ची बालिग भी नहीं होती थी, रिश्तों की कतार लगती थी। आप गौर कर लें, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हर जगह अच्छे रिश्तों की कतार लगती थी। अभी क्यों नहीं? लड़के भी मौजूद है, ऐसे नहीं कि नहीं है, लड़कियां भी मौजूद है, लड़के भी परेशान, लड़कियां भी परेशान। रातें कैसे गुजार रहे लड़के, लड़कियों की रातें कैसी गुजर रही है, रिश्ते कैसे आए? आप कहेंगे क्या नेकी की वजह से रिश्ते आते हैं? एक मिसाल दे दूं आपको, समझ में आ जाएगी बात आगे बढ़ाने से पहले मिसाल, सैयदना फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। अच्छे रिश्ते दलालों की वजह से नहीं आते, अच्छे रिश्ते आमाल अच्छे होने की वजह से। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।